chapter start kariba. That question is what? Remember, there are three questions. Which hormone was discovered first? Okay, discovered first. This is a link questions of your digestion and absorption. Second question, which was first man-made hormone? Please student, try to understand. This is the second question. Man-made hormone. Okay, which was the first man-made hormone? And the second one, the third one is what? Remember, which hormone? Okay, produce such fast hormone. Okay, in every human being's lifetime. Okay, these are very basic things, but ध्यान से देखो what I'm going to tell. Okay, so there are three questions actually. Number one question, which hormone was discovered fast? That's a very basic question. इसमें कोई problem नहीं. Second one is what? This one is the one. This one is the second one, and this one is the third one. but ध्यान से देखो. Second one is what? Which was first man-made hormone? That is okay. First man-made hormone was what? Third one, okay, which hormone produces fast hormone? Okay, समस्तिंक body रे that is a fast hormone. तम body रे भी सेटा fast secretion हेतिला as a fast hormone. मो body रे भी सेटा fast secretion हेतिला. पहले बुझिया को try करो. मु तीनटा क्वेश्चन लिखिची. which hormone discover fast? प्रथमे discover करा तो hormone नो ना कोन. Second हला which was first man-made hormone? प्रथमे human beings तयारी करतो hormone नो ना कोन. तापर असला कोउटा को हम human beings रो प्रथम secretion होतो hormone बा which was the first hormone? Okay, anybody can tell me? Sir, abstract. Okay, who know the answer actually? Which hormone is discovered first? Insulin. Who know the answer? Secretin. Okay, remember बच्चों ध्यान से this is a link तो digestion में hormone है that is secretin. Remember अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे secretin is the first hormone which was discovered. Secretin. Okay, remember. Second one, this is a question chapter of what ना your biotechnology. वो जो आपको पता है इंसुलिन was the okay insulin एली लिली कंपनी ने बनाया था इंसुलिन. Okay, which was first man-made hormone? That hormone is called as insulin. I think we are absolutely clear. Okay, number one question, which hormone was discovered first? That is secretin. Second one, which was the first man-made hormone? That is insulin. And the third one is what? Which hormone produces fast hormone in every human being's lifetime? प्रत्येक ह्यूमन बीइंग्स रो लाइफ टाइम रे प्रथम सिक्रेशन होता हार्मोन नो ना कोन? एटा के जानिचो पिले? एनीबॉडी नो इट? के जानिचो एटा? Who knows it? Which hormone produces fast hormone in every human being's lifetime? बताओ भाई. Which was the fast hormone secreted by every human being's lifetime? Anybody can tell me? Remember that name is human chorionic gonadotropin, HCG. Okay, that's a hormone that you already read it in class what? Now 12th. In reproduction chapter, there are actually three questions. Please student try to understand. Number one, which hormone was discovered first? That is your answer will be secretin. Okay, secretin को आपको पता है. And which was the first man-made hormone? The answer will be insulin. Insulin is the first man-made hormone. Which hormone produces fast hormone in every human being's lifetime? So ऐसे कौन से हार्मोन है जो कि as a fast hormone ही human beings में secretion होता है? That is the answer will be HCG. Okay, you all clear about these three? ये तीनटा समझते clear है तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बच्चों ध्यान से देखो. Okay, the sound is clear or not? The sound clear आपसे तो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो बच्चों अब हम डिस्कशन करने वाला है. That's very another very important concept. Okay, समझते कि attention ने देखो. Okay, बर्तमान चैप्टर स्टार्ट करिवा. प्रथम पढ़ेवा स्टार्ट करिवा. तो प्रथम चैप्टर पढ़ेला बेलको. Okay, तो मु आगो हार्मोन एंजाइम्स पार्ट आगो पढौनी बच्चों. ए हार्मोन एंजाइम्स पार्ट मु लास्ट को रखिची जे तमरो ग्लैंड केते प्रकार मु आज वर्तमान में स्टार्ट करिवी. वर्तमान देखो तो एक्चुअली जो ग्लैंड को हम देखुचे पहिले आपण माने जानंती. Okay, remember that the glands are how many types? Okay, तो प्रथम पॉइंट गोटे क्वेश्चन आसला ग्लैंड. जेतला हम ग्लैंड कथा डिस्कशन करूचे तो आपण गोटे बेसिक ग्लैंड जानिछंती जोटा कि आपण क्लास 11th रे पढिछन. दैट इज व्हाट? एंडोक्राइन ग्लैंड. Okay, number one gland is what? Endocrine gland. Number two gland is what? Exocrine gland. Second gland is what?
exocrine gland, and the third one is the heterocrine gland. ध्यान से देखो, heterocrine gland. That means if somebody will ask you the glands are how many types of glands are there. Okay, number one that is endocrine gland, इसमें कोई problem नहीं. नंबर 2 एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. नंबर 3 हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको पता है कि ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कब बोले ना. रिमेंबर द ग्लैंड व्हिच विल सीक्रेट हार्मोन. आपको ये चीज पता है. Okay, the gland which will secrete hormone that are called as endocrine. Endocrine gland are those who will secrete hormone. So when hormone is secreted from body. Exocrine gland means what? You know that is secretion what? Na enzymes. Okay, enzymes. आपको ये चीज भी पता है. Heterocrine का मतलब क्या है? Now who will secrete both hormones and enzymes? Will secrete both hormones and enzymes. That's a very another very important concept. बच्चों ध्यान से देखो. Okay, ये जो if you will going, if you will go to divide the gland, okay, on the basis of what they secrete, on the basis of what they secrete. बच्चों ध्यान से देखो, what they secrete, what they secrete. ध्यान से देखो, what they secrete. The glands are actually three types. One is endocrine, that means they will secrete hormone. Exocrine, that means they will secrete enzymes. Heterocrine, that means they will secrete both hormone and enzyme. That's a very important concept. And when you talk about the gland, बच्चों देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा कि glands are further divided into three parts. Autocrine, एक होता है भाई autocrine, दूसरे वाला होता है paracrine. Okay, ध्यान से देखो paracrine, and the third one is endocrine. ध्यान से देखो that the third one is called endocrine. That means what? देखो पहले हम बुझाई दउची, जदी आपन को के पचारला कि ग्लैंड को हमें केतेटा पार्ट रे डिवाइडेड करी छी, तो मोटी बैक साइड को जाई छी. देखो पहले एपटे मु लिखी छी ग्लैंड्स आर व्हाट ना डिवाइडेड थ्री पार्ट्स. नंबर 1 लिखी endocrine. Endocrine gland means, you know, endocrine gland means who will secrete hormone. Exocrine gland means what? Who will secrete enzymes. Heterocrine gland means what? ना who will secrete both. लेकिन ओके जो जिनसाटा एठी लिखी छी, you don't know it, that आपण जानि नांती ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन कोन. पहले आइटा को तुमको बुझेई दउची आराम से. किंतु एटा जानि छ एंडोक्राइन माने हार्मोन, एक्सोक्राइन माने एंजाइम. एटा पूरा इजी थिंग्स होता. देखो तो when you talk about in autocrine, paracrine and endocrine, okay, if somebody will ask you, okay sir, you divided the gland into different three types, auto, para and endo, on the basis of what? बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या बोला, on the basis of what? Remember, on the basis of the target cell, because you know why hormones, okay, gland, this is a gland and gland secrete a thing which will act on another cell. बच्चों ध्यान से देखो, बड़े gland रो secretion होतिबा जिंस सबले कोन होई, जो जिंस होए secretion से सबले आउ गोटे जिंस पर जाके act करे. But please student try to understand, this is very very important. Okay, I'm going to tell you. Okay, तो ध्यान से देखो बच्चों. So this is what? Now this is a gland. Okay बच्चों ध्यान से देखो, this is a gland. Okay, that means if this gland will secrete something, it will act on another tissue or another cell. बच्चों your pituitary, बच्चों आपको पता होना चाहिए ये चीज. Your pituitary is present in your brain. Pituitary अपन को brain में present अच्छी. किंतु pituitary रो secretion होता है growth hormone, अपन को body रो सब part रे ही growth करोची. बच्चों ध्यान से देखो. So what I'm going to tell, this is your gland. This is a gland, and that means the gland secretes something, and it has a target cell. So a gland रो गोटे कौन सी target cell अच्छी. Target cell कोउठी, ए टारगेट सेल कोठी अछि, ता बेसिस रे हम ग्लैंड को डिवाइडेड करछे तीनटा पार्ट रे. बच्चों एग्जांपल सब हम पढेला बेले देबी. डोंट वरी, एंडोक्राइन के, एक्सोक्राइन के, हेटेरोक्राइन के, और एग्जांपल आपन को आगु दिया छिबो. आपन के एतिकी फोकस करंतु. तो ग्लैंड को हम फर्दर एटी कोन करले ना, ग्लैंड को हम फर्दर डिवाइड करले तीनटा पार्ट रे, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन. बच्चों ध्यान से देखो, ऑटोक्राइन मींस व्हाट? व्हेन दिस इज ए ग्लैंड. बच्चों ध्यान से देखो, व्हेन दिस इज ए ग्लैंड, ये क्या है भाई ना, दिस इज ए ग्लैंड. If it will secrete something, बच्चों ध्यान से देखो, if it will secrete something, ये किसी जिनसा secretion कला, which will act on these own gland. बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या बोला. ऑटो मतलब क्या है? सेल्फ. जेतेबेले गोटे ग्लैंड सिक्रेशन करूथिबा जिनिस से ग्लैंड पर एक्शन नहीं है. दैट मींस ए ग्लैंड रो सिक्रेशन तो ए ग्लैंड पर एक्शन नेला, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑटोक्राइन. दैट मींस ओन ग्लैंड इज ओन टारगेट सेल. जेतेबेले निजे निजर टारगेट सेल से ग्लैंड रो सिक्रेशन होथिबा हार्मोन सेही ग्लैंड ऊपर ही एक्शन नहीं है, सेही तार एक्शन, सेही तार टारगेट, ताको हमें कहू जे ऑटोक्राइन. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. तो हमारे ऑटो मतलब कोन? अच्छा, ऑटो मतलब है सेल्फ. ओके, ध्यान से देखो बच्चों,
ऑटो मतलब क्या है? ऑटो मतलब सिर्फ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड वन इज बच्चों पैराक्राइन। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पैराक्राइन मींस व्हाट? व्हेन disease बच्चों ऑटोक्राइन मतलब ओके इट विल एक्ट ऑन इटसेल्फ। Autocrine means definition is what it will act on itself. लेकिन what about paracrine? बच्चों paracrine के मतलब क्या है? Paracrine means when a gland secretes something. बच्चों ध्यान से देखो, when a gland secretes something, when a gland secretes something, when a gland secretes something and it will act on its nearby cell. It will act on it nearby cell. बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ग्लैंड को क्या किया? डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया। नंबर वन इज ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन मतलब व्हेन इट्स टारगेट सेल इज इट्स ओन। बट पैराक्राइन मतलब क्या है? नाउ व्हेन इट्स टारगेट सेल इज द नियर बाय सेल। लेकिन ओके हियर द ब्लड इज नॉट ब्लड इज नॉट बीइंग एंगेज्ड। ओके ए जगह ब्लड रो यूज हबनी पैराक्राइन माने डायरेक्ट जाई कि तम नियर बाय सेल काम करिवे। ले मो कथा टिके बुझिया को ट्राई करो। मतलब ग्लैंड को डिवाइड करले ऑटोक्राइन माने निज ग्लैंड रो सिक्रेशन निज ऊपर एक्शन नेला। पैराक्राइन मींस व्हाट? एटा गोटे ग्लैंड अछि बचो, एटा गोटे कोन अछि ग्लैंड अछि, ए ग्लैंड रो सिक्रेशन जेतो द नियर बाय सेल बकरे माने एटी 1 अछि, एटी 2 अछि, एटी 3 अछि, माने जो द नियर बाय सेल ले कहले दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पैराक्राइन। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। ऑटोक्राइन मतलब निज ऊपर एक्शन नेला। ऑटोक्राइन मतलब कोन? निज ऊपर एक्शन नेला। ओके पैराक्राइन मतलब कोन? पैराक्राइन मतलब कोन ना नियर बाय सेल पाखा पाखी सेल जति का एक्शन नेला। बट व्हाट अबाउट एंडोक्राइन जो चैप्टर विषय में पढू छे? एंडोक्राइन ग्लैंड आर those gland whose secretion will go by the blood। बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या बोला? मैंने बोला कि ये मानकर एटा गोटे ग्लैंड रहिला, मानकर एटा गोटे ग्लैंड रहिला, यदि आर सिक्रेशन ब्लड द्वारा गला। ओके प्लीज बुझाओ ट्राई करो। ब्लड द्वारा जाईकी आउ गोटे टारगेट सेल काम कला। दैट मींस दिस इज ए ग्लैंड। ये गोटे कोन ग्लैंड? ये किएसे ना ये हैला ब्लड। यार सिक्रेशन जाई के आपरा टारगेट ला। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ना एंडोक्राइन ग्लैंड। सबु बडे मन रखंतु, इफ देयर इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड दैट मींस देयर इज ब्लड मस्ट बी एंगेज। कारण एंडोक्राइन ग्लैंड रो सिक्रेशन जोटा हार्मोन ऑलवेज मूव्स ऑन द ब्लड। हार्मोन सब बडे कहा संगे मूव करी कि जीवो ना ब्लड संगे मूव करी कि जीवो। तो प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट। ओके आज हम गोटी ग्लैंड मु तुमको पढेबी, तपर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो मैच करिवो। वेट हमर स्टार्ट हेने पडन तो मैं इंट्रोडक्शन दे सारे। देखो तो पहले ग्लैंड को हम डिवाइड करले कोन ना तीनटा पार्ट रे। ओके प्रथम कहले पहले एतिकी समस्त कर क्लियर होला जे ग्लैंड कोन सिक्रेशन करछि सेही बेसिस हम डिवाइड करले तीनटा एंडो एक्सो हेटेरो। एंडो माने हार्मोन, एक्सो माने एंजाइम, हेटेरो माने पोर। पूरी ग्लैंड को डिवाइडेड करले ऑटो पारा और एंडो। ऑटो माने ये निज ऊपर एक्शन करूछि आ पैराक्राइन माने नियर बाय सेल एक्शन करूछि बट ब्लड द्वारा जाउनी। एंडोक्राइन ग्लैंड जे से सिक्रेशन होला तार हार्मोन और से जीव कोथरे ब्लड रो प्लाज्मा रे। एतिकी समस्त क्लियर पिले? एतिकी जो कांसेप्ट जोड़े कांसेप्ट पहले और ऑल क्लियर? Yes, sir. अरे ओ गाइस मुझा ना कोई बिले कृष्णा लोपामुद्रा बेहरा। yes, sir. ओके वेरी गुड। ओके बतो ध्यान से देखो पिले वर्तमान पे मु तुमको गोटिए ग्लैंड पढेबी, तुम सेही थ्रू जज कर दबो जे हमर एठी एक्चुअली एनसीईआरटी बेस पाठ पढा हबो कि नाही। ओके इंट्रोडक्शन तो एनसीईआरटी रो देई हबो। इंट्रोडक्शन मतलब तुमको गोटे मु ग्लैंड विषय भास्ट कथा कहि देली। वर्तमान गोटिए ग्लैंड आज पढेबी। ओके तमर जो गोटे वीकली फ्री डेमो लागिवो तो मु तुमको किछि गोटे टॉपिक नेबी आ टॉपिक चूज करी देखिबी। ओके वर्तमान आज हम गोटे ग्लैंड चूज करते थायराइड ग्लैंड। ओके फिर बात ये करनी देखो समझते तमे थायराइड ग्लैंड पर कोन जानिछो हम डिस्कशन करिबा। लास्ट को से हार्मोन एंजाइम कोन से गुडी पढेबा नै से प्लस 2 रे तमे पढिजो तो लास्ट को पढेबी। ग्लैंड रो हम स्टार्ट करिबा। मते मोर प्रथम क्वेश्चन दरकार पहिले तो थायराइड ग्लैंड कथा आसिला पहिले बुझाउ ट्राई करो। इफ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड ओके आपण माने देखंतु यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स एंड यू कैन मैच द थिंग आल्सो। आपण एनसीईआरटी रो गोटे गोटे लाइन रो 10टा लाइन बाहर करके पढेबी देखंतु। तो मु प्रथमे कहली को ग्लैंड ना थायराइड ग्लैंड। पहिले बुझाउ ट्राई करंतु थायराइड ग्लैंड। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी थायराइड ग्लैंड रो केतेटा हार्मोन आपण जानि छथि आज जाय। थायराइड ग्लैंड एतिकी हार्मोन को सिक्रेशन करे। हु कैन टेल मी? ओके how many types of hormones are secreted by the thyroid gland? Thyroxine. Okay say gotti pile that is a 10th level answer. A 10th level student can tell me thyroid gland will secrete thyroxine. आउ भी हार्मोन अछि तारो? Who can tell me? पाठ टिके पढो बर्तन नीट पय तमे आसी गलो। प्लस 2 लेवल तमे चैप्टर मु जानि छी। मु चैप्टर काहे स्टार्ट करली कहलो सबोटी सर्कुलेशन डायरेक्शन भलो की पढि था। ए चैप्टर उडे दै थानी पढि न थानी से इथु स्टार्ट करली। देखो थायराइड ग्लैंड पिले मु बार बार तुमको कहली थायराइड ग्लैंड रो एक्चुअली तीनटा हार्मोन अछि। बर्तन थायराइड ग्लैंड रो एमिति पढाबो देखो तुम जो भी क्वेश्चन ट्राई करबो हबो अटेंशन स्टार्ट करबा। पिले मन रखो थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड।
ओके एठी मते केते पिला चैलेंज करंती कि सर आपण को लार्जेस्ट ग्लैंड केमति एंडोक्राइन को कहि देले एटा लार्जेस्ट ग्लैंड हमरो गूगल ले आछि लिवर पिले मु बारंबार कहली गूगल ले आछो लिवर पिले लिवर हैला लार्जेस्ट ग्लैंड बट मु एंडोक्राइन मेंशन करिछि बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लाइन okay here I am mentioning largest endocrine if the question will be largest gland that's liver largest organ that's liver okay smallest gland that's pituitary but जेतले मु क्वेश्चन पदले largest endocrine gland that means your answer will be what thyroid I think you are absolutely clear okay but remember the largest gland is what thyroid and remember this is present in the anterior part of larynx okay okay anterior okay inside में कुछ अलग लिखा है like either side of trachea okay सर म्यूट है जाइछंती okay students you can find me out okay if somebody will ask you जे थायराइड ग्लैंड पर सर आपण कोन पॉइंट कहउछंती कहंतु प्लीज जगर समस्त फोकस करो थायराइड ग्लैंड हम जोड़े पॉइंट कहले लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज थायराइड ओके लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज थायराइड आ गुड असला एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंक्स एरा पोजीशन देखो पहले थायराइड ग्लैंड असला कोन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड टिके रही था नेटवर्क प्रॉब्लम रही गला ओके लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आ एटा पोजीशन हला कोन एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंक्स ओके एनसीईआरटी लिखा छि इधर साइड ऑफ ट्रैकिया बतो रिमेंबर एनसीईआरटी हम फोकस करछि इधर साइड ऑफ ट्रैकिया लिखा छि आप हम पढिले कोन ना एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंक्स आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर ओके तो प्लीज वर्तमान हम देखिबा कोन ना वर्तमान आसिला सर थायराइड ग्लैंड हमें जानि छु गोटी हार्मोन थायरॉक्सिन ना पिले तमे जहा जानि छु वर्तमान देखो एनसीईआरटी रे तीनटा हार्मोन लिखि हम तीनटा हार्मोन विषय पढिबा पिले मन रखो थायराइड ग्लैंड एक्चुअली हार्मोन रिलीज करे तीनटा गोटे है T3 गोटे है T4 प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड number 1 is T3 number 2 is T4 and the third one is TCT thyrocalcitonin बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जहां भी थायराइड ग्लैंड रो क्वेश्चन उठेबा जे क्लास पर सब सॉल्व होबा खाली क्लास ठीक से देखो ओके T3 T4 TCT T3 T4 भीतर T4 को हमें कहूजे थायरॉक्सिन मन रखो T4 को हमें कहूजे कोन थायरॉक्सिन तमरे को तीनटा हार्मोन रिलीज होची एस एनसीईआरटी में आपण उठेकी देखि पारंती देयर आर 3 हार्मोन मु पढेबी केमिति कोन रिलीज होची खाली अटेंशन देखंतु देयर आर 3 हार्मोन प्लीज स्टूडेंट 3 हार्मोन कोन ना एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंक्स रहला T3 गोटे हार्मोन रिलीज होचंती T4 गोटे हार्मोन रिलीज होचंती TCT गोटे रिलीज होचंती TCT माने हला थायरोकैल्सिटोनिन ये भी गोटे अछि सर ओके देखो केमति रिलीज होची समस्त फोकस करो एनसीईआरटी मेलेबो गोटे गोटे लाइन सॉल्व हे जीवो वर्तमान हम गोटे लाइन वर्तमान पढिबा जे थायराइड ग्लैंड सर शेप की परी देखो बच्चों थायराइड ग्लैंड somehow looks like a butterfly or H shape it somehow looks like a butterfly or H shape गोटे एम प्रकार ग्लैंड अछि तमरो okay anterior part of larynx there is a type of gland okay remember it contains two different types of cell okay one is follicular cell that means here I am doing the follicular cell okay just like this follicular cell just like this and except it there is a parafollicular cell which I am drawing in the blue color okay बच्चों ध्यान से देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एनसीईआरटी में हर एक लाइन है तो मैंने क्या बोला दिस इज योर थायराइड ग्लैंड ओके कभी-कभी क्वेश्चंस पूछते हैं थायराइड ग्लैंड शेप इज व्हाट आई इधर द आंसर विल बी H shape or the answer will be butterfly shape okay whatever you can find in an option but ध्यान से देखो this is a follicular cell this cell is called as what follicular ये सेल को हमें कहूचे कोन follicular जोटा राउंड शेप रो सेल अछि that is a follicular cell आ गोटे तमर गैप अछि आपण मन देखि परछन एई जगहटा गोटे सी टाइप रो सेल अछि that is called as what parafollicular cell parafollicular cell please student try to understand this point is very important that means if you will focus of thyroid gland
ओके जदि आपण माने थायराइड ग्लैंड को देखुछंती तो आपण माने दीटा टाइप रो सेल पाउछंती गोटे हला फॉलिकुलर सेल जोटा की पूरा राउंड शेप रहउची एंड द अनदर वन इज द पाराफॉलिकुलर जोटा गोटे सी टाइप रो रहउची तो सारा माने दी प्रकार सेल रहउछंती एस बच्चों ये दी प्रकार सेल रहउछंती आ एंको जे मझिरो कनेक्शन करची एनसीईआरटी में भी उसके बारे में लिखा है दिस इज कॉल्ड एज isthmus or a connective tissue this is called as isthmus or you can call it a connective tissue please student try to understand okay ध्यान से देखो thyroid gland is what na thyroid gland is containing follicular cell that means the answer is very important and the another cell types of cell are what parafollicular जोटे छोटो छोटो मु गोटे ग्रीन कलर रे करजी जोटा एथरे डी क्लैरिटी आसु मु आउथरे करजी रुवा ओके एई जोटे छोटिया सेल करनी कि बाबा एई जोटे छोटिया सेल करजी ओके जोटे छोटिया सेल करजी पहले छोटिया सेल करजे डाला सी से ताको हम कहजे पाराफॉलिकुलर तो सर आमे पढितले थायराइड ग्लैंड रो थायरॉक्सिन रिलीज हुए आंको भीतर को सेल थायरॉक्सिन रिलीज करंती सर अच्छा सर जदि थायराइड ग्लैंड को देखिबा खाली एति की कोन फॉलिकुलर पाराफॉलिकुलर सेल रहिबे आउ किछि सेल रहिबेनी हां पिले आउ सेल अछंती देयर आर ओके आउ द सेल हम पढिबानी किंतु मन रख आउ गोटे जिंस पढिबा देयर आर ब्लड वेसल मो पाखे रेड मार्कर एक्चुअली नाही ओके तो काली तुम रेड हम ये बेटर वे रे ये करबा रेड मार्कर जोटा रहिला एटा हम देखै थांदे ब्लड वेसल तो प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लड वेसल दैट मीन दिस आर वेरी इंपोर्टेंट तो मु तीनटा तुमको पिक्चर करेली तीनटा तुमको देखेली देयर इज ए फॉलिकुलर सेल व्हिच वन इज राउंड शेप देयर इज ए पाराफॉलिकुलर सेल दैट मीन देयर इज ए सी शेप पाराफॉलिकुलर दैट मीन दिस इज वेरी सी शेप ओके माने इंग्लिश लेटर सी परीक्षा देखिया पई आ गोटा असला केस isthmus आसिला आकु छाडी की रहिले ब्लड वेसल ओके एत्ती की जिनिस पले थायराइड ग्लैंड रे मु बुझेई दोची एटा हला मोर राइट साइड रे अछि राइट लोब एटा मोर लेफ्ट साइड रे अछि लेफ्ट लोब आंको दि जन भीतर कनेक्शन अछि दैट इज कॉल्ड व्हाट isthmus ता कनेक्शन का हम कहूचे कोन isthmus दैट मीन दिस पॉइंट बुझी पारलो एटा कनेक्शन करूची ता भीतर दी प्रकार सेल रहले ओटा फॉलिकुलर आ ओटा पाराफॉलिकुलर प्लीज बुझाओ ट्राई करो गोटे हला कोन फॉलिकुलर सेल आ ओटा हला कोन पारा फॉलिकुलर सेल ओके तो सर आंको भीतर जे क्वेश्चन आसीबो थायरॉक्सिन को के सिक्रेशन करूची पहले मन रखो फॉलिकुलर सेल सिक्रेशन करे काहाकू बिले मन रखम बारंबार मा को फॉलिकुलर सेल विषय पढौची फॉलिकुलर सेल जोटा राउंड शेप सेल अछि सी ही सिक्रेशन करे थायरॉक्सिन को जाहो का हम कहउचे T3 आउ T4 आपण मान कर हैला थायरॉक्सिन बिले वर्तमान पॉइंटटा भलो कि बुझंतु म आगु डिस्कशन करि चलीबी मु कहिली दीटा टाइप रो सेल अछि बिले बुझियाउ ट्राई कर फॉलिकुलर राउंड शेप सेल ए राउंड शेप सेल एक्चुअली सिक्रेशन करबो जोड़े हार्मोन को and that two hormones are called as what T3 and T4 okay so please student try to understand T3 T4 and भीतर T4 एक्चुअली कोन आसुची ना T4 is your what ना थायरॉक्सिन तो T4 को आपने कोन कहउछंती ना थायरॉक्सिन कहउछंती T3 एक्चुअली थायरॉक्सिन नुह सर पाराफॉलिकुलर सेल उडा अछि सी टाइप रो हां सी कागो सिक्रेशन करे ना सी सिक्रेशन करे थायरोकैल्सिटोनिन आउ गोटे हार्मोन अछि पहिले मन रख मु बारंबार तीनटा हार्मोन ना कहितली जो सी शेप रो सेल रहला ताका हम कहउछे सी सेल कहउछे और पाराफॉलिकुलर सेल कहउछे ये सिक्रेशन करे टीसीटी बा ए हार्मोन ना हला थायरो एनसीईआरटी भी लिखा है आपण माने पाई परिबे थायरोकैल्सिटोनिन तो दिक्के वर्तमान मु बैक को जाके आपण गोटे गोटे लाइन बुझौची तो प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कैन फाइंड देयर आर व्हाट ना देयर आर एक्चुअली द two types of cell one is a round जोटा आपन देखा दउते आउडे ब्लू टा तमर पिक्चर क्लैरिटी आसुनी त देख जानि परथुबे तो से जो ब्लू कलर टा आसुची दैट इज कॉल्ड सी सेल लो सिक्रेशन होची टीसीटी आ फॉलिकुलर सेल लो सिक्रेशन होचंती कि एसे ना T3 आ T4 ता माने फॉलिकुलर सेल सिक्रेशन करे थायरॉक्सिन को बाकी गोटे हार्मोन अछि ताको हम कहजे थायरोकैल्सिटोनिन से सिक्रेशन हुए सी सेल रो वर्तमान हम ता माने सर आपन कहबा कथा ए फॉलिकुलर सेल जो राउंड शेप सेल अछि ये सिक्रेशन करे थायरॉक्सिन को हां पिले ये सिक्रेशन करे T3 और T4 ये केमिति करे सेटा एनसीईआरटी रे दिया है छि लाइन बाय लाइन मु वर्तमान पढेबी अच्छा एति के जाय समझ करो क्लियर पिले ऑल क्लियर अबाउट ओके Yes, sir. पिले समझ से क्लियर सेल जोटा सर हां कहूनो सर सी सेल जोटा पैराफॉलिकुलर सेल से टकवाउछ हां वेरी गुड से पचारला सर the C cell is called as parafollicular cell yes ma C cell actually कोटे क्वेश्चन भी आसे parafollicular cell को C cell काहे के कहंदी because it आर शेप हैला C परिका केते बेला ऑप्शन देतो ई कैल्सिटोनिन सिक्रेशन करे TCT सेति पय तार शेप ना C cell जहा parafollicular cell सेया और parafollicular देखिया पय इंग्लिश लेटर C परिका एति के क्लियर पिले आज्ञा सर yes sir मु जाहा पचारिबे अच्छा कृष्णा आर यू क्लियर
Krishna? Yes, sir. Okay, very good. You are a girl. Mohit, are you clear? Yes, sir. ओके बच्चों ध्यान से देखो, हम आगे जाएंगे। अब हम आगे जाएंगे, बहुत सारा डिस्कशन करने वाला है। काल से भी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आई विल कम विद अ बिग व्हाइट बोर्ड एक्चुअली। ओके, तो रिमेंबर दैट थिंग्स। ओके प्लीज स्टूडेंट, हमें वर्तमान डिस्कशन करबा कोन ना, वर्तमान हमर गोटे एटा हला तमर एनसीईआरटी रे देइची। देखो पहिले जो जिनसोडा एनसीईआरटी रे देइची मु सेटा देखैबी, आ तमे माने देखो केमते थायरॉक्सिन सिक्रेशन होउची से एनसीईआरटी को केमते गोटे क्लास रे मन रखुछु। देखो पहिले एटा आपनकर फॉलिकुलर सेल देखंतु, तापर हमें देखले दीटा हार्मोन रिलीज होते। दिस इज ए व्हाट ना, दिस इज ए फॉलिकुलर सेल। वो फॉलिकुलर सेल इज राउंड शेप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। फॉलिकुलर सेल इज राउंड शेप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड रिमेंबर देयर इज ए लाइन आल्सो इन एनसीईआरटी, द फॉलिकुलर सेल आर सराउंडेड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम। फॉलिकुलर सेल को हम जो देखुचंती, फॉलिकुलर सेल एक्चुअली कहा द्वारा सराउंडिंग होचंती क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके बच्चों ध्यान से देखो, दिस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, दिस इज ए फॉलिकुलर सेल। ओके, फॉलिकुलर सेल को एपिथेलियम टिश्यू रहिला क्यूबोइडल एपिथेलियम। ध्यान से देखो, क्यूबोइडल एपिथेलियम। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, मु बारंबार कहली क्यूबोइडल एपिथेलियम भीतर आपण माने आगुर सुनिथिबे, दिस इज द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपण माने टिश्यू चैप्टर थिला, एनिमल टिश्यू वाज देयर, तो अंडर दैट चैप्टर यू हैव ऑलरेडी रीड योर द क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो ध्यान से देखो, दिस क्यूबोइडल एपिथेलियम इज अ टाइप्स ऑफ एपिथेलियम व्हिच लुक्स लाइक ए somehow cuboid cell, somehow cuboid cell। तो मोर क्वेश्चन आसी पिले देखो, मु जो मानकर पूरा सीरियस नीड पाइबार इच्छा अछि। ओके, मु तो गोटे कथा कहूची, तमर गोटे क्वेश्चन पूरा 100% श्योर सेटा ला को टिश्यू कोठी प्रेजेंट अछि। जेंति मु कहली थायराइड ग्लैंड रो फॉलिकुलर सेल क्यूबोइडल एपिथेलियम अछि, सेमि बहुत सारा क्वेश्चन आसो को टिश्यू कोठी अछि, सेटा क्वेश्चन। ओके, जेमिति हेले नीट रे गोटे क्वेश्चन सेटा आसे, गोटे क्वेश्चन माने 4 मार्क, हम इग्नोर करि परिबानी। जे मानकर क्वेश्चन आसो थायराइड ग्लैंड रो फॉलिकुलर सेल को एपिथेलियल टिश्यू थाय, तमे आंसर देखो क्यूबोइडल एपिथेलियम। एमते आस्ते आस्ते तुम टिश्यू चैप्टर रे पढिबो, एमते गोटे अलगा चैप्टर भी तुम जानि परिबो। देखो तो क्यूबोइडल एपिथेलियम पहिले बुझिया को ट्राई करो। हु कैन टेल मी function of epithelial tissue? Who can tell me what is the function of epithelial tissue? You know, all are from +2. You can tell me what is the function of the epithelial tissue? So who can tell me what is the function of epithelial tissue? So it protect भाई epithelial tissue क्या करते हैं? टिश्यू का फंक्शंस क्या है? What is the basic function of epithelial tissue? Remember that's a very easy absorption way. So secretion way, absorption way, protection very way. good, excellent answer. That is the, it will help in secretion. But this is the very absolutely fine answer. This will help in the secretion. Second one is what? This will help in the absorption. But ध्यान से देखो, this will also help in the absorption. That means this point is also clear. तो मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज आपको कंप्लीट कर दिया कि actually it will help in secretion. secretion करते रहते, absorption भी करते, protection भी करते, लेकिन यहाँ पर हमको protection नहीं चाहिए। You just have to remember क्यूबोइडल एपिथेलियम हो या जो भी एपिथेलियम हो, बेसिक फंक्शन क्या है? ये सिक्रेशन करता है और अब्जॉर्प्शन करता है। प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प इन सिक्रेशन एंड इट विल हेल्प इन अब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसका मतलब ये सिक्रेशन करेगा। ओ बच्चों देखो, रिमेंबर ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम रहिला, क्यूबोइडल एपिथेलियम बर्तन पे कोन करिवो? सिक्रेशन करिवो। काहा को सिक्रेशन करिवो? रिमेंबर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट। पहिले से गोटे सिक्रेशन करे, गोटे कहा को ना ग्लाइकोप्रोटीन। प्लीज ए टर्म मुर्ग पूरा आराम से देखो, ए टर्म मुर्ग पूरा आगु दरकार हबो। पहिले मु बार बार कहली, समस्त टिक अटेंशन एठु पाठ टिक स्टार्ट हैला। मु कहिबार माने हैला, ए जो क्यूबोइडल सेल अछि, ये वर्तमान पे रिलीज करिवो गोटे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन माने हैला ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। Okay, if somebody will ask you about glycoprotein is what? Glucose plus protein. Remember glycoprotein रो ना हैला कोन? थायरोग्लोबुलिन। मो ए तीनोटी पॉइंट खाली तुम मन रखिया पड़िबो। थायरोग्लोबुलिन तामर में एठी लिखि दउची। प्रथम सेल देखो, ए फ्लो चार्ट मेथड नीड पे बहुत दरकार। प्रथम सेल के थिला? क्यूबोइडल सेल। ओके, क्यूबोइडल एपिथेलियम एथरा हम का कुछ प्रॉब्लम नाही। क्यूबोइडल एपिथेलियम कहा को रिलीज कला? क्यूबोइडल एपिथेलियम कहा को रिलीज कला? ग्लाइकोप्रोटीन को। कहा को रिलीज कला? ग्लाइकोप्रोटीन। दैट मींस इट विल रिलीज द ग्लाइकोप्रोटीन। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। ए ग्लाइकोप्रोटीन रो ना कोन? थायरोग्लोबुलिन। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन रो ना कोन? थायरोग्लोबुलिन। बर्तन पाठ स्टार्ट होजी, पिलेटी देखंतु थायरोग्लोबुलिन केमिति एक्चुअली थायरोक्सिन फॉर्मेशन होउची। एनसीईआरटी रे पूरा लाइन बाय लाइन लिखा आइची, बट लाइन बाय लाइन पढिला आपण माने बुझी परिबेनी। जस्ट फोकस हियर।
तुम गोटे तुमको कहि दउछ तुम बुझी पारिबो पिले बुझिया ट्राई कर वर्तमान थिला आपनकर एटा ना क्वेश्चन फॉलिकुलर सेल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ए फॉलिकुलर सेल वर्तमान पे रिलीज कला कहा को ना फॉलिकुलर सेल रिलीज कला कहा को ना ग्लाइकोप्रोटीन ओके दिस इज ए ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है भाई ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्लाइकोप्रोटीन मींस व्हाट ग्लूकोज प्लस प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है थायरोग्लोबुलिन ओके बच्चों ध्यान से देखो दिस नेम डज व्हाट थायरोग्लोबुलिन अच्छा अब मुझे बताओ ये जो ग्लोबुलिन एटा ଗୋଟେ कोन एटा ଗୋଟେ प्रोटीन ना एटा ଗୋଟେ फैट ना ଗୋଟେ कार्बोहाइड्रेट हु कैन टेल मी ग्लोबुलिन प्रोटीन बताओ प्रोटीन ग्लोबुलिन इज अ व्हाट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन प्रोटीन वेरी गुड दैट्स वेरी कॉमन आंसर बच्चों ग्लोबुलिन का नाम अब जब भी सुना है एंटी ओके इम्यूनोग्लोबुलिन और व्हाटएवर दिस इज ए प्रोटीन एक्चुअली अच्छा प्रोटीन्स आर मेड ऑफ व्हाट प्रोटीन को जिंस को नेकी तयारी हेची अमीनो अमीनो एसिड एसिड अमाइनो एसिड दैट मींस ग्लोबुलिन के अंदर का अमाइनो एसिड है जिसका नाम है क्या टायरोसिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने बोला दिस इज ए क्यूबोइडल एपिथेलियम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्यूबोइडल एपिथेलियम किसको सिक्रेशन किया ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रेशन किया ग्लूकोज प्लस प्रोटीन को ओके तो बच्चों ध्यान से देखो एक ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है थायरोग्लोबुलिन है थायरोग्लोबुलिन मतलब क्या होता है इसके अंदर क्या है ग्लोबुलिन है ग्लोबुलिन मतलब ग्लोबुलिन से प्रोटीन प्रोटीन का अंदर क्या है अमाइनो एसिड का नाम क्या है टायरोसिन आई थिंक एब्सोल्युटली क्लियर तो एई तो पॉइंट के देखियो पड़िबो आपनको जे एटा थिला क्यूबोइडल एपिथेलियम ये रिलीज कला ग्लाइकोप्रोटीन ना एटा हला ग्लाइकोप्रोटीन ना मु डायरेक्ट थायरोग्लोबुलिन कहि परथांती किंतु मु कहया चाहते एटा ग्लूकोज प्लस प्रोटीन दा ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस कला और थायरोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन ला प्रोटीन आ प्रोटीन कहा कोन प्रेजेंट अछि ना अमाइनो एसिड रो ना हला कोन टायरोसिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अमाइनो एसिड रो ना हला कोन टायरोसिन तो आ माने सर आ भीतर एई जो फॉलिकुलर सेल अछि आ भीतर अमाइनो एसिड हमको मिली गला केसे टायरोसिन वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एति के आपण बुझी गले जे या आपको सिक्रेशन कला तार अमाइनो एसिड हमको मिलला टायरोसिन पिले आउ गोटे कथा तुमको कहितली थायराइड ग्लैंड रो फॉलिकुलर सेल पाखरे गुडाय ब्लड वेसल जाईची प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड के जाईची ब्लड वेसल सो दिस इज ए व्हाट दिस इज ए blood vessel please try to understand if somebody will ask you जे follicular cell पाखरे किए जाईची ना बच्चों ध्यान से देखो follicular cell पाखरे एक्चुअली किए जाईची ना ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल भीतर प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ए ब्लड वेसल भीतर एक्चुअली गुडाय कोन अछि आयोडीन तमे जानि छ तमे कोन करछ तमे आयोडीन प्लस सॉल्ट नोछ आयोडीन ओके आयोडीन प्लस सॉल्ट नोछ सॉल्ट रा अमाउंट कोन हे जाउछ डेवलप हे जाउछ कोठी ब्लड वेसल भीतर तो बच्चों ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला दिस इज ए फॉलिकुलर सेल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फॉलिकुलर सेल ओके फॉलिकुलर सेल किसको सिक्रेशन किया ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन वर्तमान पे कोन ता ना कोन थायरोग्लोबुलिन पर को अमीनो एसिड्स अछि टायरोसिन वर्तमान तुम देखो यार सिक्रेशन काम तुम जानि देलो और आउ गोटे काम थिला अब्जॉर्प्शन भी कर दबो ट्रैप भी कर दबो गोटे जिंसो को अब्जॉर्ब भी कर दबो देखो केमति अब्जॉर्ब करूची तो ए ब्लड वेसल भीतर दिस इज ए ब्लड वेसल एंड from this blood vessel it will trap the iodines तो ध्यान से देखो it will trap the iodine तो मैंने क्या बोला पहले से क्या सिक्रेशन किए थे ना टायरोसिन ओके अब किसको ट्रैप करने वाला है आयोडीन कहां से है ना आयोडीन इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल okay from where na iodine is present in the blood vessel तो कोठु blood vessel present अछि ना तमे जो फूड रे नउछ iodine plus salt सेठु तमरा iodine अछि तो एतिकी पले एतिकी समस्त क्लैरिटी पाइलो कि ए सर नो तापर हम कोन केमति टायरोसिन फॉर्मेशन में कहबी ये दीटा काम कला ये टायरोसिन को सिक्रेशन कला और ये ब्लड वेसल रो आयोडीन को ट्रैप कर देला ट्रैप करिक आनि के आ भीतर छाड़ देला वर्तमान कोन हमर रिएक्शन करबी केसे आयोडीन और टायरोसिन मुते रिएक्शन विषय पढेबी एतिकी पॉइंट समस्त को क्लियर तो जानी पर लागो केमिति कोन दीटा जिंस अवेलेबल होची Yes, sir. आर ऑल क्लियर स्टूडेंट्स यस सर यस सर 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 टेक बता। केयर देख कोन हेलो सर I can हेलो सर रिपीट कॉल करो कोन करबी you message me what are you telling hello यस सर
हां कह कोन कहू सर ओके यू कैन लास्ट पॉइंट मेसेज रखो टिके बुझे दियंतु ओके मैं देखो मेसेज ओके सर लास्ट पॉइंट आउ थरे कहि दंदो ओके बुढी होची सेटा कहूनु देखो पिले वर्तमान समस्त आंसर देखो जे प्रथम कथा कहिली सिक्रेशन हैला टाइरोसिन पिले रेडी हेकी अछि ओके टाइरोसिन रेडी अछि मन को विदाउट टाइरोसिन थायरॉक्सिन फॉर्मेशन हेई परिबो नाही टाइरोसिन निहाती दरकार टाइरोसिन इज प्रेजेंट मान टाइरोसिन दरकार वर्तमान तमे जानिचो एपिथेलियल टिश्यू आउ गुटे काम अछि अब्जॉर्प्शन करिवो ट्रैप करिवो काहा को ट्रैप कला सर ना आयोडीन को ट्रैप कला आयोडीन अछि कोठी ब्लड वेसल अछि बिले कोठी अछि ब्लड वेसल तो ब्लड वेसल ले थिबा समस्त आयोडीन की कोन कर देला ट्रैप कर देला प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रैप करी गाड़ी कोथरे छाड़िला फॉलिकुलर सेल ले छाड़िला तो ध्यान से देखो को सेल ले छाड़िला फॉलिकुलर सेल तो आ भितरे आगुरु थिला टाइरोसिन वर्तमान रही गला आयोडीन पिले बुझिया को ट्राई करो टाइरोसिन को सिक्रेशन कला और आयोडीन अवेलेबल हेई गला आयोडीन वर्तमान पे आसी पहुंची गला वर्तमान कोन हबो वर्तमान देखो समस्ते केमिति थायरॉक्सिन फॉर्मेशन हुए समस्त सिखो ओके माकु लिखौची देखो पिले वर्तमान आ भितरे आयोडीन पहुंची गला आगुरु कोन छै टाइरोसिन तो प्रथमे देखो गोटे आयोडीन सांगरे पहिले बाटस्ट एनसेट रे गुडा लिखाई सब गोटे आयोडीन सांगरे गोटे टाइरोसिन मिसिबो गोटे कोन मिसिबो टाइरोसिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन आयोडीन रिएक्ट विथ वन टाइरोसिन वन पाई रहिबो मोनो एम मोनो रहिला मोनो आ आई पाई रहिला आइडो ओके आ टी पाई रहिला टाइरोसिन फिर टी पाई को रहिला टाइरोसिन आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर बट तो ध्यान से देखो 1i + 1t ता माने मु बारंबार कहले आगुरु सिक्रेशन हेकी थिला कोन टाइरोसिन पुनी अब्जॉर्प्शन करछि ब्लड वेसल लु कोन आयोडीन तो 1 आयोडीन + 1 टाइरोसिन बर्तन पे मिसिले 1 आयोडीन + 1 टाइरोसिन बर्तन पे मिसिले 1 आयोडीन + 1 टाइरोसिन मिसी की कोन हे गले MIT और मोनो आइडो टाइरोसिन MIT सेमति तमर 2i + 2t दीटा आयोडीन संगे दीटा टाइरोसिन मिसी की कोन हेले डाइआइडो टाइरोसिन आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली क्लियर आपा में कहते DIT वर्तमान सुधा भी हमर थायरॉक्सिन तयारी हेनी थायरॉक्सिन फार्मूला हला T4 ये हला T1 ये हला T2 हमें जानते दीटा हार्मोन काम कर पाइबे आइदर T3 और T4 तो फिर देखो 1i + 1t हे गला कोन मोनोआइडो टाइरोसिन जहां का मैं कहू जे MIT वर्तमान देखो अभी बुझिया वर्तमान पाठ स्टार्ट हे गला MIT + DIT कोन MIT + DIT मोनोआइडो टाइरोसिन प्लस डाइआइडो टाइरोसिन मोनो डाई मिसिले हे जबे ट्राई तो इटा हे जबे कोन ट्राइआइडो थायरोनाइन एटी टाइरोसिन लिखलेनी एटी चेंज करके लिखि देली टाइरो ओके थायरोनाइन ये हबो T3 प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्तमान तमे जो कहथला T3 हार्मोन केमिति तयार होछि समस्त रे फोकस करंतु आराम से आपण माने बुझी परिबे तो प्रथमे कोन कहिली 1i + 1t गोटे आयोडीन संगे गोटे टाइरोसिन मिसिबो जहां को हमें कहूचे मोनोआइडो टाइरोसिन बा वी कैन कॉल इट MIT दैट पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर सेमति तमरा से दीटा आयोडीन संगे दीटा टाइरोसिन मिसिला दीटा आयोडीन संगे दीटा टाइरोसिन मिसिला दैट विल फॉर्म डाइआइडो टाइरोसिन और यू कैन कॉल इट DIT अब हमें कहूचे DIT मोनो हे गला डाई हे गला तो मोनो डाई मिसी की कोन करले मोनो डाई मिसले ट्राई आई पाई आइडो बट टी पाई आउट केमिकल फार्मूला चेंज हे जाउची दैट्स कॉल्ड एज थायरोनाइन ताका हमें कोन कहूचे थायरोनाइन T3 बट तो लास्ट को फॉर्मेशन हबो DIT + DIT डाई प्लस डाइआइडो के डाइआइडो ताका हमें कहूचे कोन टेट्राआइडो थायरोनाइन प्ले बुझाओ ट्राई करो टेट्राआइडो थायरोनाइन जहार फार्मूला हला T4 बा थायरॉक्सिन तो आपण माने देखंतु थायरॉक्सिन केमिति तयारी हैला प्लीज यू जस्ट हैव टू फोकस ओके तो जोड़े DIT मिसिला DIT डाई मिसिला पर टेट्रा हे गला टेट्रा और कमे कोन कहू छे आइडो बच्चों ध्यान से देखो टेट्रा आइडो थायरोनाइन बा जहार फार्मूला हला थायरॉक्सिन तो ए फॉलिकुलर सेल रो मु आउ थरे पुनी बुझेइबा रिपीट करबी देखो
ए थायराइड रो फॉलिकुलर सेल रो आपण मानकर रिलीज हला कोन ना पहिले बुझिया को ट्राई करंतु DID को हमें कहउछे टेट्राहाइड्रोथायरोनाइन बा T4 जहा को हमें कहउछंदी थायरोक्सिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड तो सर तो प्रथमे कोन हला हमें आउथरे रिपीट करबा मु बार बार कहली मु पचारिबी आपण माने आंसर देबे अच्छा कहंतु जे थायराइड ग्लैंड रो फॉलिकुलर सेल को एपिथेलियल टिश्यू थिला यू हैव टू आंसर वेरी गुड क्यूबोइडल एपिथेलियम क्यूबोइडल एपिथेलियम कहा को रिलीज कला ग्लाइकोप्रोटीन सर लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबिन थायरोग्लोबुलिन अच्छा मा माने ग्लोबुलिन ता गोटे प्रोटीन ना कोन प्रोटीन ओके ए बच्चो प्रोटीन माने ता पाखरे कोन थिबो अमीनो एसिड अछि ना नहीं यस सर अरे पुओ पिला को सोई पहिले कॉइस के आंसर नहीं ग्लोबुलिन जो प्रोटीन रहिला प्रोटीन न कोन अमीनो एसिड रो ना कोन टायरोसिन थायरोक्सिन ओके वेरी गुड टायरोसिन बताओ आवाज टायरोसिन अच्छा तो सेई जो तमर थायराइड ग्लैंड अछि तासे बहुत ब्लड वेसल अछि ए ब्लड वेसल रो आयोडीन को कम करबो ट्रैप करबो आयोडीन को ट्रैप कला परे कोन होबो मते को अरे आयोडीन को ट्रैप कला परे रिएक्शन होबो गोटे आयोडीन आ गोटे टायरोसिन मिसी की मोनोहाइड्रो टायरोसिन नासिला आयोडीन दैट मींस 1I + 1T okay 1I + 1T that will form monoiodotyrosine or MIT okay something 2I + 2T that will form diiodotyrosine DIT okay बच्चों कभी-कभी क्या होता है मोनो के साथ डाई भी मिक्स अप हो जाता है MIT + DIT that will form triiodothyronine or you can call it T3 I think you're absolutely clear और उसके बाद जो आते हैं DIT + DIT this is your thyroxine एटा को सेल रिलीज होची फॉलिकुलर रो तो फॉलिकुलर रो केतेटा हार्मोन रिलीज हला T3 and T4 I think you are absolutely clear NCERT उठेइबो यदि गोटिए लाइन मिस हेतो कबे सर अपने लाइन टा मिस कर देछंती ओके एतिकी समस्या क्लियर पिले यस सर को सर ट्राइआइडोथायरोनाइन आउ सेटा 9 एटी सील लेके जी एटी मु 9 लेबो जेला 9 NIN यस सर जदी ट्राइआइडोथायरोनाइन आउ मोनोआइडोटायरोसिन को ऐड करिया तो कोन हबो हब तू जा कहछ बुझी गली तू कहछ कि सर आपण कहबा कथा T3 ओके ना T3 हबनी तू कहछ कि सर T3 संगे गोटे मन को मिसे देले T4 हबन ना पिले T3 गोटे तयारी हला माने से निजे गोटे हार्मोन हे जीवो सिया का संगे रिएक्शन करिवनी एमिटी हे परिबो गोटे DIT संगे MIT मिसी परिबो ओके D डाई प्लस मोनो हे के परिबे किंतु T3 का संगे रिएक्शन करिवनी कारण निजे से गोटे हार्मोन ओके सिया चाहिबो का संगे रिएक्शन सर सर चारटा MIT मिसले हबनी नो मु कहि DIT + DIT और गोटे DIT को जोड़े MIT ओके यस सर ओके बर्तन आपको मु लिभाउछ पिले आपको मु लिभाउछि देखो पिले सब क्लास रे जा पढेबी तमर व्हाटएवर तुम क्लास रे मन रहिबो आ सेटा तमर नीट पे बहुत दरकार पिला सब मो स्टूडेंट सब ऑप्शन 355 350 तुम आगु को आसो क्लास करो देखो केमती सब चैप्टर पढाउछ देखो तो पिले बुझिया को ट्राई करो वर्तमान हमें डिस्कशन करूछंती थायरोक्सिन सरी गल ओके थायरोक्सिन फंक्शन कोन दिस इज अनदर वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखो पिले इफ somebody ask you function of thyroxine के जानि कि फंक्शन कोन के कहि परिबो what is the function of thyroxine पिले फंक्शन कोन who know about the function function का जाना जी what whoever know that function of thyroid okay remember number one function but ध्यान से देखो okay there are very important concept I will discuss okay function मतलब पहले बुझाओ ट्राई करो ये मेंटेन करे कहा को BMR को basal metabolic rate okay BMR मतलब basal metabolic rate बॉडी रो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करे तुम्हारा थायरोक्सिन हार्मोन ओके बच्चों तो फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन वाला BMR तुम्हारा बॉडी रो हार्ट और रेट को मेंटेन करे हार्ट और रेट को मेंटेन करे बॉडी रो टेम्परेचर को मेंटेन करे थर्ड वन इज व्हाट ना बच्चों ध्यान से देखो तो फंक्शन इज व्हाट इट विल मेंटेन द हार्ट रेट इट विल मेंटेन द टेम्परेचर बच्चों ध्यान से देखो द थर्ड वन इज एब्सोल्युटली व्हाट and maintain the body weight that is called as function that is BMR or you can call it basal metabolic rate
ओके तो बॉडी रे तमर जतक नॉर्मल बासल बा नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट रहउची बीएमआर रहउची ताको मेंटेन करिवार हेल्प करे ओके मेंटेन करिवार हेल्प करे जस्ट लाइक हार्ट रेट को बॉडी रो टेंपरेचर को बॉडी रो वेट को सेमती इट विल आल्सो हेल्प इन द टिश्यू ग्रोथ एनसीईआरटी रे जहां लिखा है पहले पॉइंट पढिबो तो मन पकेबो कथा टिश्यू ग्रोथ ओके टिश्यू ग्रोथ मतलब कोन ये टिश्यू मानकर ग्रोथ सर टिश्यू मानकर ग्रोथ पे ग्रोथ हार्मोन अछि हां आई नो अबाउट ग्रोथ हार्मोन बट ये भी तमर टिश्यू को ग्रोथ करि परिबो ओके तापर गोटे फंक्शन करे पहले वेरी वेरी इंपोर्टेंट फंक्शन जोडा को तमे सब इग्नोर करिपो तो एठी तमर एनसीईआरटी क्वेश्चन पचारि कि तम हैरान करियो द फंक्शन इज व्हाट एरिथ्रोपोएसिस आरबीसी फॉर्मेशन ओके ए फंक्शन प्राय पिला इग्नोर कर दियंती कि सर आमे जानि छु एरिथ्रोपोएसिस के करे ना एरिथ्रोपोएसिस एरिथ्रोपोएटिन करे ओके ना पिले एरिथ्रोपोएटिन तो करे पिले एरिथ्रोपोएटिन तो करे किंतु आउ के करे ना मन रकम बारंबार कहली थायरॉक्सिन भी करि परिबो कॉर्टिसोल भी करि परिबो तो सब बेले मन रखो एरिथ्रो माने आरबीसी पोएसिस माने फॉर्मेशन तो आरबीसी को फॉर्मेशन करे कैसे ना तुम्हारा थायरॉक्सिन हार्मोन आई थिंक एब्सोल्युटली क्लियर ओके तो हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है टेंपरेचर को भी कंट्रोल वेट बच्चों और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं है शायद लेकिन क्वेश्चंस आ चुका है और आगे भी आएंगे जो होता है मेटामॉर्फोसिस ध्यान से देखो भाई मेटामॉर्फोसिस क्या है रिमेंबर ओके ए फ्रॉग लार्वा बच्चों ध्यान से देखो पॉइंट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉग लार्वा ओके फ्रॉग के पास कुछ लार्वा है भाई फ्रॉग लार्वा विल कन्वर्ट इनटू फ्रॉग के जो लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें फ्रॉग में ओके किसमें एडल्ट फॉर्म में एडल्ट फ्रॉग इसको आप बोलते हैं एडल्ट फ्रॉग रिमेंबर ऑन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट थायरॉक्सिन हार्मोन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस दैट मींस इफ समबडी विल आस्क यू ओके थायराइड से क्या हुआ ना थायराइड से थायरॉक्सिन सिक्रेशन हुआ थायरॉक्सिन के प्रेजेंट में क्या होने वाला है ना फ्रॉग के जो लार्वा है ये फ्रॉग के लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ध्यान से देखो फ्रॉग ओके एडल्ट में क्या हो जाते हैं ना कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों रिमेंबर दिस एडल्ट रे कन्वर्ट प्रोसेस को हमें कहते हैं मेटामॉर्फोसिस दैट मींस ए बेसिकली प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या मेटामॉर्फोसिस ध्यान से देखो मेटामॉर्फोसिस दैट मींस दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओके तो फ्रॉग के लार्वा क्या हुआ एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया अगर फ्रॉग के लार्वा एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया उसका मतलब क्या होता है ना ए मेटामॉर्फोसिस को प्रेजेंस रहेला थायरॉक्सिन सार ता माने थायराइड ग्लैंड नथिले जदि गोटे फ्रॉग रो लार्वा को हमें थायराइड ग्लैंड टा काढी दबा से कोन एडल्ट को कन्वर्ट हेई परिबनी ना मु बार बार कहली द आंसर विल बी बिग नो दैट if you will remove the thyroid gland from the frog that it will not convert okay it will not convert to a what it will not convert to a adult frog that means this point is absolutely correct okay ये थी फंक्शन मान रखो ये टिश्यू ग्रोथ करे और मेंटल फैकल्टी की भी ग्रोथ करे गोटे मनुष्य आईक्यू की भी डेवलप करे थायरॉक्सिन हार्मोन कौन करे पचारिबी ये और मेंटल फैकल्टी की भी डेवलप करे मेंटल फैकल्टी मतलब ओके यू कैन कॉल इट आईक्यू ओके ब्रेन आईक्यू जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ओके मेंटल फैकल्टी को क्या करते हैं ना इंक्रीज करते हैं प्लीज स्टूडेंट यति की फंक्शन आर अछि मु बार बार कहली ये बीएमआर करे बासल मेटाबॉलिक रेट ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये नॉर्मली टिश्यू को भी ग्रोथ करते हैं दिस विल हेल्प इन द टिश्यू ग्रोथ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट विल आल्सो हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस ये एरिथ्रोपोएसिस भी करते हैं एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है आरबीसी फॉर्मेशन करते रहते हैं भाई इट विल फॉर्म द आरबीसी इन अ रैपिड मैनर ओके इट विल फॉर्म द आरबीसी इन रैपिड मैनर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस ओके दिस इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन अच्छा थायरॉक्सिन का फंक्शन समझ कर क्लियर है पिले ऑल क्लियर Yes, sir. Yes, sir. okay I will discuss right now further ओके ध्यान से देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है बच्चों दिस इज अ वेरी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट कभी कभी क्या होता है थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है दैट मींस कभी कभी थायरॉक्सिन विल सीक्रेट मोर
and then the thyroxine will secrete in less. Okay, but so this is a very big concept. जब thyroxine ज्यादा secretion होता है, that means when the thyroxine will secrete more, this is called as hyperthyroidism. Okay, hyper मतलब आपको पता है ना, hyper means something when sometimes, okay, what happens, something will secrete more and more amount, that is called as hyperthyroidism. और hypo मतलब क्या है, thyroxine जब कम secretions होते हैं, hypo, this is called a hypothyroidism. ध्यान से देखो, तो कभी-कभी क्या होता है, थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रेशंस होते हैं और कभी-कभी क्या होता है, थायरोक्सिन कम सिक्रेशंस होते हैं। तो जब ज्यादा सिक्रेशंस होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म, और जब कम सिक्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गया कि थायरोक्सिन क्या होता है। तो सर जब थायरोक्सिन अधिक सिक्रेशंस होउची ताले कोन हबो, कम सिक्रेशन हेले कोन हबो, तो यू हैव टू टेल मी। ओके, द थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रेशन होउची, हार्ट रेट कोन हबो मते कहलो, इट कंट्रोल्स हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट बढ़िबो ना कमिबो, जदि अधिक सिक्रेशन अरे काम होला हार्ट रेट को कंट्रोल करे, तो थायरोक्सिन अधिक होला हार्ट रेट बढ़िबो ना कमिबो, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। increase aba वेरी गुड, दिस Sir, सिंपल पॉइंट। increase sir. हां वेरी गुड, हां बस एई सब गोटे गोटे पॉइंट को नै कि ना तमर नीट रो क्वेश्चन स्ट्राइक करे। तो एई जो पॉइंट को आपण जो नोट करूछंती तको एनसीईआरटी रो साइड रो एनसीईआरटी पढिबे त साइड रे छोट छोट से एनसीईआरटी गोटे पेज पूरा फुल हेथो नोट रे, खाता नोट कॉपी तो रहइबो किंतु से एनसीईआरटी रो पेज रे नोट करले दैट मींस इट विल बेटर। तो थायरोक्सिन क्या हुआ, ज्यादा सिक्रेशन, सो हार्ट रेट विल बी व्हाट, इंक्रीज। तो प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay, if the thyroxine will secrete more amount, the heart rate will be increased. Okay, thyroxine अगर कम secretion हुआ, that means the heart rate will be decreased. That is another very big concept. Okay, तो जब अधिक secretion होची increase करूची, कम secretion होची decrease करूची। Second one is what, temperature. Okay, temperature ए जगह रे कोन करिगला, increase करिगला, पहले ए जगह रे temperature increase करिवो, तो thyroxine अधिक secretion हो जाय, ए जगह रे कोन करिवो, temperature slower down हे जो। तो please student try to understand. Okay, so what I'm going to tell, that is a very big concept. Okay, thyroxine अगर ज्यादा secretion हुआ, that means when the thyroxine will secrete in okay more amount, that means heart rate will be increased and here the heart rate will be decreased. That's why this is a very absolute point. Okay, यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। I think it is another very important point. And the third one is what, प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, वेट के साथ क्या होते हैं बच्चों, ए वाला जो पॉइंट है ना, ये भी भाई वेरी इंटरेस्टिंग है। ओके, रिमेंबर हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब बताओ वेट क्या होने वाला है, increase weight loss होगा। वेरी गुड, वेट विल Yes, बी sir. डिक्रीज। प्लीज स्टूडेंट ध्यान से देखो, बिकॉज़ इफ द थायरोक्सिन विल सीक्रेट इन मोर अमाउंट, द मेटाबॉलिज्म विल बी इंक्रीज। बॉडी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाता है, और बॉडी मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज कर गया भाई, तो वेट के साथ क्या होता है, वेट विल बी गेट डिक्रीज। मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, so you have to know that if somebody will ask you, that means what happens with the weight, that when the thyroxine will secrete in more amount, remember if the thyroxine will secrete in more and more amount, the body metabolism will be increased. अगर body metabolism increase कर जाते हैं, that's why the weight will be what, now weight will be get decreased. That's very big concept. Okay, the weight will be, okay, weight will be increase here. हाइपो में क्या हो जाता है, वेट विल बी इंक्रीज। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर वेट डिक्रीज हो गया, यहाँ पर वेट इंक्रीज हो गया। दिस आर बेसिक पॉइंट। नंबर 4, बॉडी मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है, एक्टिवनेस ज्यादा हो जाता है, दैट मींस यू कैन नॉट फील स्लीप। ओके, नींद नहीं आती, दैट मींस स्लीपलेसनेस। ओके, यू कैन फील स्लीपी, स्लीपलेसनेस। ओके, लेकिन हाइपो में यू विल फील स्लीपी। ओके, यू विल फील स्लीपी। तो यहाँ पर क्या है, you will feel always active, that means you always want to stay in active mode. Second one is what, restlessness. Restlessness. Okay, restlessness means what, restlessness means what, now you don't need rest. Okay, you are always active in mode, active mode. Okay, तो लेकिन यहाँ पर अब क्या है, lethargy. lethargy मतलब टायर्ड हो जाता है। Okay, you will feel tired, that is another very important. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज किया, यहाँ पर हार्ट रेट डिक्रीज किया, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज किया, वेट लॉस हो गया, यहाँ पर वेट इंक्रीज कर गया भाई, यहाँ पर स्लीपलेसनेस। ओके, नींद नहीं आया, यहाँ पर ओके ज्यादा नींद आया, यहाँ पर रेस्टलेसनेस, यू विल नॉट फील एनी टाइप्स ऑफ रेस्ट, लेकिन यहाँ पर यू कैन फील टायर्ड। प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों ध्यान से देखो, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट के साथ क्या होते हैं, पेशेंट विल टेम्परेचर विल मोर। ओके, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, दैट मींस the patient will, बच्चों ध्यान से देखो, what I'm going to tell, टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो मतलब ये जो पेशेंट है,
okay, they are intolerance मतलब you feel, that means okay, ओडिया in you can tell, okay, tolerate करि पारलनी, ये गोटे जिंस को tolerate करि पारुनी। तो देखो जब थायरॉक्सिन ज्यादा सिक्रेशन हैला, they will leads to hyperthyroidism। तो बच्चों क्या हो गया ना, hyperthyroidism हो गया। और जो hyperthyroidism हो गया मतलब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब the patient will intolerate, okay, they will feel intolerance for what, heat or cold। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, they will feel intolerance to what, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाते हैं, बताओ टेम्परेचर बढ़ी गला तो ताको कोटा को से टॉलरेट करि परिबेनी, हीट को ना कोल्ड को, कोल्ड को no ma, टेम्परेचर बढ़ी गला माने they will not prefer the heat। so please student try to understand, okay, so this type of heat is different, this is not your what, जिसको आप बोलते हैं कि जो फीवर में जो टेम्परेचर आते हैं वो नहीं है। okay, remember this, if the temperature will be increased, ध्यान से if the temperature will be increased, that means there will be intolerance to what, heat intolerance। तो बच्चों ये हीट इंटॉलरेंस हो गया भाई। हाँ, यहाँ पर क्या होने वाला है, ओके, कोल्ड इंटॉलरेंस। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो यहाँ इधर क्या हो गया, कोल्ड इंटॉलरेंस। प्लीज ओके, ध्यान से, these are some big concepts। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, और एक बार भाई रिपीट कर देता हूं, दैट मींस यू विल बी क्लियर। बच्चों एक होता क्या ना, जब थायरॉक्सिन ज्यादा सिक्रेशंस होता है, बच्चों मैंने तो फंक्शन बोल दिया ना, फंक्शन बोल दिया, तो थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या हुआ, दैट मींस व्हेन द थायरॉक्सिन विल सीक्रेट मोर एंड मोर, दैट मींस द फंक्शन विल गेट इंक्रीज। लाइक अगर थायरॉक्सिन ज्यादा सिक्रेशन हुआ, हार्ट रेट के साथ क्या होता है, दैट मींस द हार्ट रेट विल बी इंक्रीज, तो टेंपरेचर विल बी इंक्रीज, द वेट विल बी डिक्रीज। तो वेट के साथ क्या होता है, तो वेट विल बी गेट डिक्रीज। ध्यान से देखो, वेट विल बी गेट डिक्रीज। और हार्ट रेट, ओके, थायरॉक्सिन में कौन सिक्रेशन हुआ, हार्ट रेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज, टेंपरेचर इंक्रीज, टेंपरेचर डिक्रीज। अगर टेंपरेचर इंक्रीज हो गया मतलब देयर विल बी हीट इंटॉलरेंस। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, कोल्ड इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर वेट क्या होता है, वेट के साथ क्या होता है, वेट डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, वेट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आती भाई। ओके, यू विल नॉट फील स्लीप। हियर व्हाट हैपन, यू विल फील स्लीप, दैट्स अनदर पॉइंट। रेस्टलेसनेस भाई, रेस्टलेसनेस क्या है, मतलब रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है, रेस्टलेस मतलब आपको रेस्ट नहीं चाहिए, विल ऑलवेज एक्टिव। और यहाँ पर क्या है, लिथार्जी फील कर। दिस इज द क्वेश्चन और दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, ध्यान से देखो, थायरॉक्सिन। ओके, तो थायरॉक्सिन में कौन कौन पढ़िले ना, मु प्रथम कथा कहली थायरॉक्सिन केमिति सिक्रेशन होची। ओके, सेकंड पॉइंट रे पढ़िले व्हाट आई एम टीचिंग इन द सेकंड पॉइंट, दैट फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट व्हाट, जे अधिक सिक्रेशन है हाइपर रे कौन हुए, हाइपर रे कौन हुए। टिल नाउ बच्चों, टिल नाउ 100% कांसेप्ट क्लियर है क्या, बुझी गलो कांसेप्ट ओडा जानि नथुला आगरो कौन कौन होची एक्चुअली, बच्चों क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर। तापस Yes, sir. आउटे जोरे कहनु, मु के जोरे कहूचे। ओके, सो दिस नॉट तापस, वेरी गुड, एक्सलेंट गाइस आवर। ओके ओके, आज माने आज टॉपिक रा लास्ट आउ इज सब इंपोर्टेंट सी सेल कामटा। तापर मु नेक्स्ट क्लास आइला डिजॉर्डर पढेबी, नेक्स्ट क्लास रे डिजॉर्डर पढेबी और सी सेल का टॉपिक सरी जीवो, थायराइड ग्लैंड टॉपिक सरी जीवो, नेक्स्ट क्लास डिजॉर्डर पढेबी। अब गोटे छोटो टॉपिक हम कवर करबा। देखो पिले बुझिया को ट्राई करो। वर्तमान मु कहितली थायराइड ग्लैंड रे गोटे फॉलिकुलर सेल थिला, आउ गोटे को सेल थिला, मन पका, आउ गोटे को सेल थिला, C-cell, पैराफोलिकुलर सेल, parafollicular C-cell, तो सी सेल्स आर कॉल्ड व्हाट, सी सेल्स आर कॉल्ड व्हाट, पैराफोलिकुलर सेल। वेरी गुड, दैट पॉइंट इज व्हाट, पैराफॉलिकुलर सेल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो मैंने क्या बोला, सी सेल, तो सी सेल को आप क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल बोलते हैं भाई, पैराफॉलिकुलर सेल। ये पैराफॉलिकुलर सेल क्या सिक्रेशन करते हैं, PCT, हार्मोन का नाम कैल्सिटोनिन। पायरोकैल्सिटोनिन। हाँ, कैल्सिटोनिन बोला था भाई, कैल्सिटोनिन। ओके, आई एम राइटिंग अगेन, कैल्सिटोनिन, और यू कैन कॉल इट TCT, और यू कैन कॉल इट थायरोकैल्सिटोनिन। बच्चों ध्यान से देखो, थायरोकैल्सिटोनिन, दैट मींस ओके यू कैन ऐड द 3 डिफरेंट नेम। ओके, तो मैंने क्या बोला कि थायराइड ग्लैंड, ओके, जेतोला आपण थायराइड ग्लैंड देखुचंती तो आपण माने पैराफॉलिकुलर सेल पाउचंती, पैराफॉलिकुलर सेल पाउचंती माने पैराफॉलिकुलर सेल लो सिक्रेशन करिवार कैपेसिटी याती अछि। कोन कोन अछि, कैल्सिटोनिन सिक्रेशन करिवार कैपेसिटी अछि, TCT सिक्रेशन करिवार कैपेसिटी अछि। ओके, बुझाउ ट्राई करंतु। आ थायरोकैल्सिटोनिन तो सिक्रेशन तार ना सब तार ए गोटी
ये हार्मोन कोन गोटिए ता ना हला डिफरेंट सर कोन करे पिले गोटिए फंक्शन आर फंक्शन बेसी किछि नाही मने रखो थाइरोक्याल्सिटोनिन पिले समस्त बुझिया ट्राई करो टीसीटी बा कैल्सिटोनिन जहां को कुह बा थाइरोक्याल जहां को कुह यार काम हला ब्लड रे कैल्शियम रो लेवल को डिक्रीज कराए प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके ब्लड रे कैल्शियम को डिक्रीज करिवार काम हला कहार टीसीटी रो बा थाइरोक्याल्सिटोनिन रो तो आपण माने एतिका को क्लियर होंतु सर आपण कहिले कोन ना टीसीटी बा थाइरोक्याल्सिटोनिन एक्चुअली टीसीटी जोटा रहिला ए थाइरोक्याल्सिटोनिन एक्चुअली कोन करिवो ना ब्लड रो कैल्शियम को डिक्रीज करिवो एस ब्लड रो कैल्शियम को डिक्रीज करिवो तो सर ए ब्लड रो कैल्शियम को इंक्रीज के करे प्लस से हार्मोन विषय में तो पढ़ी ने खाली कहि दो सुनो आ गोटे हार्मोन अछि पाराथर्मोन ओके parathermone will increase blood calcium level पिले मो कथा टिके बुझिया को ट्राई करो पाराथायराइड ग्लैंड रो हार्मोन हला पाराथर्मोन ता विषय हमर पढ़ा हेनी पाराथायराइड ग्लैंड मे भी नेक्स्ट क्लास रो टॉपिक हे पारे पाराथर्मोन हमर एपर्यंत पढ़ा हेनी मु कहली पाराथर्मोन जोटा रहिला ये ब्लड रो कैल्शियम को इंक्रीज कराए तो थाइरोक्याल्सिटोनिन ब्लड रो कैल्शियम को कोन कराए डिक्रीज कराए ताले जो दी जण काम करूछंती जणे ब्लड रो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करौछि आ जणे ब्लड रो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करैछि ताले याकर फंक्शन वेट ताले तांकर फंक्शन सर कोन व्हाट इज देयर फंक्शन पहले मन रखो दे बोथ आर डूइंग अपोजिट फंक्शन ये ब्लड रो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराउछि ये ब्लड रो कैल्शियम को इंक्रीज कराउछि दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या बोला मैंने बोला टीसीटी क्या करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है और पाराथर्मोन क्या करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है जो दोनों का फंक्शन है ये दोनों क्या है दे आर बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर that means what na that means they are okay opposite to each other so जेतबेले दीटा हार्मोन परस्पर रो opposite काम करନ୍ତି पले बुझाउ ट्राई करो when the two hormones are doing opposite function of each other ताको हमें कहू जे कोन एंटागोनिस्टिक ओके एति की थिला थायराइड डिसऑर्डर को छाडी की थायराइड ग्लैंड रो जति की थिला हमर सब कवर हैला सर आउटरे टिके रिपीट करिवे पाराथर्मोन फंक्शन कार से जो पैराफोलिकुलर सेल ओके फंक्शन देख टिके देख मैडम आराम से अछि टीसीटी कोन करछि ओके थायरोक्याल्शियम ब्लड रो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कला ये ब्लड रो कैल्शियम लेवल को कोन कला इंक्रीज के से पाराथर्मोन हमर पढाबो पाराथायराइड ग्लैंड रे हमर पढा हेनी मु केले कहि देली जे ये जो कामटा करछि ब्लड रो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करोछि पहिले बुझाउ ट्राई करो ये ब्लड रो कैल्शियम लेवल डिक्रीज करोछि ये ब्लड रो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करोछि तो जणे डिक्रीज करो जणे इंक्रीज करोछि ताले दी जनकर काम कोन हला अपोजिट हला तो ताको हमें कहबा कोन दे आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक कोन कहबा एंटा माने अपोजिट एंटागोनिस्टिक ओके ऑल क्लियर Yes, sir. Yes sir. ओके तो पिले आज हमर गोटिए टॉपिक लेले थायराइड ग्लैंड सरी गला आ गोटे आरंभ कले सरी बनी अधा रहि जिवो तेन कर सेटा कंप्लीट रहिबनी अच्छा जहां थायराइड ग्लैंड रो पढ़ा हला कोल डिसऑर्डर को छाडी की डिसऑर्डर एक्चुअली अल्प अछि सेटा मु तक पढेबी तो वर्तमान समस्तिंगर क्लियर तो जति की पढ़ा हला Yes, sir. ओके यस सर हां तो वेरी गुड तो हमें नेक्स्ट क्लास में भी काली हमें परिबा एति गोटे टॉपिक सला नेक्स्ट क्लास में अलग टॉपिक उठेबा नेक्स्ट क्लास को तुम एजे पढ़ी के आस तापर हमें टॉपिक स्टार्ट करिबा ओके स्टूडेंट Yes, sir. यस सर Yes, sir. थैंक यू सर थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर Thank you, sir.